ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ محنت کشوں کی فلاح کے لیے سوشل سیکیورٹی اسپتال میں بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر اور کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر نگرانی شام کی OPD کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے ہزاروں ورکرز اور ان کے خاندان مستفید ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی حسن صابری کی اس رپورٹ میں۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال فیصل آباد میں محنت کشوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے شام کی OPD کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر اور کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی نے اسپتال کا دورہ کیا۔ شام کی OPD میں میڈیکل، سرجری، آرتھوپیڈک، یورالوجی، ریڈیالوجی اور پیتھالوجی سمیت اہم شعبے اب شام کے وقت بھی فعال رہیں گے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر انجم رضا کا کہنا ہے کہ شام کی OPD سے صنعتی اور تجارتی اداروں کے ورکرز کے لیے علاج میں آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ اپنے کام کے بعد علاج کے لیے آ سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتال مدینہ ٹاؤن میں رجسٹرڈ 2,16,000 سے زائد ورکرز اور ان کے زیر کفالت افراد کو جدید علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر انجم رضا کے مطابق مستقبل میں اسپتال کو کسی میڈیکل کالج سے منسلک کرنے یا نرسنگ اسکول کے قیام کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن صابری، NTN نیوز، فیصل آباد۔ رخ کریں گے سیالکوٹ کا، جہاں محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی امام بارگاہوں میں مجالس اعزا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے نمائندے اس وقت امام بارگاہ دربتور میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عمران اشرف، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ کی سب سے بڑی امام بارگاہ دربتور اور ڈب سونیا کے اندر۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں تو محرم الحرام کا آج یکم پہلا محرم شروع ہو چکا ہے اور مجالس کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، جس میں ذاکرین اپنی اپنی باری سے خطاب کر رہے ہیں اور ظاہرین کی اکثریت تعداد میں موجود ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو پنجاب پولیس کے بر وقت جوان چوکو بند دستے کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جس میں ایلیٹ فورس کے جوان، پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس کے جوان بھی روڈ پر رواں دواں کے لیے عوام الناس کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اور عوام الناس کو بچائیے کہ بالخصوص ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون رکھا جائے تاکہ کوئی روڈ بلاکنگ نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو جگہ جگہ پہ سبیل کے انتظام کیے گئے ہیں تاکہ زائرین کو پانی کے لیے ٹھنڈے سبیل کا پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور DPO مظفر گڑھ نے علی پور کا محرم الحرام کے حوالے سے دورہ کیا۔ DPO نے سیکیورٹی کے انتظامات چیک کیے اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ مزید دیکھتے ہیں نمائندہ حماد رضا کی رپورٹ۔ محرم الحرام کے حوالے سے DPO مظفر گڑھ اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے علی پور کا دورہ کیا۔ میونسپل کمیٹی آفس میں امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات بھی کی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور نمائندگان کو محرم الحرام امن، بھائی چارہ اور مذہبی عقیدت و احترام سے گزارنے کی درخواست کی گئی۔ DPO مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد خان اور ڈپٹی کمشنر قرۃ العین نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ جلوس، مجالس اعزا کے لائسنس داران کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ بعد ازاں DPO مظفر گڑھ نے سیت پور، خان گڑھ، دوئمہ شہر، علی پور اور لتی ماڑیاں کا دورہ بھی کیا۔ DPO مظفر گڑھ نے بتایا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ محرم الحرام کے ایام میں خود نگرانی کروں گا۔ ایام کو پرامن بنانے میں پولیس اور دیگر اداروں کا ساتھ شہری تعاون کریں۔ شہری سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ نفرت انگیز پوسٹ پھیلانے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد رضا، NTN نیوز، علی پور۔ دنیا بھر کی طرح کربلا والوں کی یاد منانے کے لیے چکوال میں بھی مجالس و ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عشرہ محرم الحرام کے مجالس سے علماء کرام اور ذاکرین مارکہ حق و باطل پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ چکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں آصف علی نائک۔ دنیا بھر کی طرح چکوال میں بھی محرم الحرام کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی لازوال قربانی کی یاد میں مجالس اعزا کا سلسلہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہے۔ محرم کی یہ مجالس ہر سال کی طرح اس سال بھی بھرپور انداز میں منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں علماء کرام و ذاکرین عظام واقع کربلا کے دلسوز پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ چکوال میں مختلف امام بارگاہوں اور مذہبی مراکز میں ان مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان مجالس میں اہل علاقہ بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دین اسلام کی بقا کے لیے دی گئی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ علماء و ذاکرین اپنے خطاب میں اس عظیم قربانی کو اسلام کی روح قرار دیتے ہوئے واقع کربلا میں یزیدی ظلم و ستم اور حسینی صبر و استقامت پر مفصل روشنی ڈال رہے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ حضرت
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज भी इंसानियत, हक, अदल और आजादी का रोशन मीनार है। मजालस के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं और मुंतजिमीन की जानब से अज़ादारों के लिए मुनासिब इंतजाम फराहम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ आसफ अली नायक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज, चकवाल। उधर आरिफवाला में मुहर्रमुल हराम में जुलूस व मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई समय जुलूस के रास्तों में लगाई जाने वाली पानी की सबीलों को चेक करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। इसके अलावा महकमा हेल्थ, रेस्क्यू 1112, पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के जवान हाई अलर्ट हैं। मजीद बता रहे हैं आरिफवाला से हाजी उमैर हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदड़ और डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक की ज़ेरे निगरानी जो है वो तहसील भर में सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला शमसाबाद इमाम बारगाह कसरे अबू तालब में, जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ इमाम बारगाह कसरे अबू तालब के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैं वकार हुसैन मिनास एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी इमाम बारगाह कसर अबू तालब शमसाबाद मुखातब हूँ। अमसाल मुहर्रमुल हराम में इंतज़ामिया की तरफ से जो इंतज़ामात किए गए हैं, हम उस पर मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श जो इंतज़ामात हैं उन पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। इंतज़ामिया ने ख़ुसूसन DPO साहब, ज़िला पाकपतन, DC साहबा ज़िला पाकपतन, तहसील आरावाला में AC साहब और बल्दिया के तमाम अमला, चीफ़ ऑफिसर बल्दिया, उनकी काविशों को मैं सराहता हूँ कि उन्होंने पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक इंतज़ामात आसान तरीके से किए हैं। इस साल इंतज़ामात में खुसूसी तौर पर डिफरेंस नज़र आ रहा है, चाहे वो सफाई का इंतज़ाम हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों, चाहे वो सबीलों के या दीगर इंतज़ामात जो ज़िला पाकपतन में किए गए हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं। हम इस पर ज़िला पाकपतन की तमाम इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, जैसा कि आपने इमाम बारगाह कसरे अबू तालब के जनरल सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनी, वो उनका यही कहना है कि इस दफ़ा जो ज़िला पाकपतन तहसील आरीवाला में जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और हम इसको सराहते हैं। जी, अब बात करेंगे दीपालपुर समेत ज़िला उकाड़ा में DPO राशिद के अहकामात पर DTO उकाड़ा दानिश महमूद ने बस स्टैंड्स और छोटे शहरों के लारी अड्डों पर जाकर ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम की है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ाओं के मुतालिक भी बताया है। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। दीपालपुर तहसील समेत जिला उकाड़ा में DPO मोहम्मद राशिद हदायत के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर दानिश महमूद ने जिला भर के बस स्टैंड और छोटे शहरों के लारी अड्डों पर जाकर बसों वैगनों के ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लिक आगाही फराहम की और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजाओं के मुतल्लिक बताया। चलाएं या पेट्रोल चलाएं, किसी गाड़ी के अंदर LPG सिलेंडर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपकी जिंदगी ऐसे ही जो सवारियां अंदर बैठी हैं उनकी जिंदगी भी है। आपने बता हर ड्राइवर को इन्फॉर्म करना है कि छत पे किसी सूरत में किसी सवारी को नहीं बैठाना। DTO उकाड़ा दानिश महमूद ने ड्राइवरों को मुखातब करते हुए कहा, मुसाफिर गाड़ियों में गैस सिलेंडर की तनसीब, ओवरलोडिंग, सीटों से ज्यादा या छतों पर मुसाफिरों को बैठाने पर मुकम्मल पाबंदी है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके हादसात की शरह कम की जा सकती है। अपनी और मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। खिलाफ वर्जी करने वाला ड्राइवर गाड़ी समेत थाना में न सिर्फ बंद होगा बल्कि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज, दीपालपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम की जेबों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। बैनुल अज़लाई और मकामी रूट्स पर किरायों में मनमाना इजाफा करके शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। इस पर देखते हैं मियाँ चन्नू से मिर्ज़ा कमर शहजाद की रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा हुआ और ट्रांसपोर्ट के किराए आसमान से बातें करने लगे। बैनुल अज़लाई और अंदरून शहर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों और रिक्शों ने किरायों में अज खुद इजाफा करके शहरियों के लिए सफ़र करना मुश्किल बना दिया। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया ने कोई किरायानामा जारी नहीं किया और ना ही किरायों पर अमल दरामद कराने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही किराए, बसों के किराए वालों ने मन मर्जी के किराए लेने शुरू कर दिए हैं। इनका कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है।
हुकूमत को चाहिए कि इनको जो है वो लगाम डालें और इनको जो है अपनी हद में लेके आएँ, ये अपनी मर्ज़ी से किराए वसूल कर रहे हैं जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो जैसे ट्रांसपोर्टर को खुली छूट मिल गई। इंतज़ामिया की गफलत के बाद ना सिर्फ किराया बढ़ा दिए गए बल्कि कई मुकामात पर शहरी और ड्राइवरों के दरमियान झगड़े भी मामूल बन गए। ਕਿਰਾਇਆ ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਧੇ ਨੇ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਦਾ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰਫ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर पर किरायानामा जारी करे और इस पर सख्ती से अमल दरामद कराए ताकि अवामी मुश्किलात में कमी आ सके। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। उधर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद की जानिब से थाना सिटी अहमदपुर शर्खिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त आला अफसरान के गोश गुजार किए। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद की जानिब से थाना सिटी अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त आला अफसरान के गोश गुजार किए। खुली कचहरी में SP भावलपुर जमशेद इकबाल भी RPO भावलपुर के हमरा थे जिन्होंने मौके पर शहरियों की शिकायत सुनी और फौरी अहकाम जारी किए। शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठाए, कुछ ने नाजायज मुकदमात ताखीर पर FIR के इंदराज और तफ्तीशी अफसरान के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। RPO भावलपुर राय बाबर का कहना है कि पुलिस आवाम की खिदमत के लिए है, किसी किस्म की ज़्यादती या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी का मकसद आवाम को बराह रास्त रसाई देना है ताकि पुलिस निज़ाम को बेहतर किया जा सके। SP जमशेद साहब ने इस मौके पर मौजूदा अफसरान को हदायत की कि शहरियों की शिकायत को फौरी मेरिट पर अजाला किया जाए। खुली कचहरी का इनेकाद एक खुश आइंदा कदम है जिसमें पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद में इजाफा मुमकिन है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, NTN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। और अब बात करेंगे जैकबाबाद की जहां बदअमनी का राज है। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सजावल बलोच। जी सजावल, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी की वजह से आम शहरी जो है वो परेशान हैं। जैकबाबाद में मोबाइल छीनना, नकदी छीनना और मोटरसाइकिल का चोरी होना रोज़ का मामूल बन चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका आने वाले से क्या कहना है। देखो, जैकबाबाद जो है ना इस वक्त बिल्कुल नो-गो एरिया बन गया है। आम लोग जो हैं डाकू, रेजनों, गन पॉइंट वाले चोरों के जो है ना रे मुकरम पर छोड़ दिए गए। NTN न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। देख रहे हैं आप गुज़श्ता दिनों से कि हर किसी के साथ बाइक का मसला हो रहा है, किसी के साथ डकैतियाँ हो रही है, किसी के साथ घर पे जाके हो रहे हैं। हम अपील करते हैं हाजी शर्मुन मोगरी साहब को और हाजी MNA मिर्जाज खान जखरानी साहब को कि शहर की सूरत हाल को देखें। आप जिम्मेदार हैं। मीर गुलाम अब्बास जखरानी साहब को कहते हैं, आला इदारे जो हैं यहाँ पे जैकाबाद के SSP साहब को कहते हैं, DIG साहब को कहते हैं, DIG लाड़काना साहब को अपील करते हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपील करते हैं कि जैकाबाद की सूरत हाल आप देखें। जी बिल्कुल, आपने जैकबाबाद शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि जैकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी पर कंट्रोल किया जाए। उन्होंने SSP जैकबाबाद IG सिंध से मुतालबा किया है कि जैकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी पर नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ सजावल बलोच, NTN न्यूज़, जैकबाबाद।